Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. In today's video, I will show you how to create a general store in Excel for your business or other personal stores. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने व्यवसाय या अन्य व्यक्तिगत स्टोर के लिए एक्सेल में जनरल स्टोर कैसे बनाएं। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। How to create general store sheet in MS Excel. MS Excel में जनरल स्टोर शीट कैसे बनाएं। Overview. Managing a general store efficiently requires accurate tracking of inventory, sales and stock levels. Microsoft Excel is a powerful tool that helps store owners organize this data effectively. By creating a general store sheet in Excel, you can monitor stock availability, record purchases and sales, and generate reports to make informed business decisions. This guide will walk you through the process of setting up a simple yet effective general store sheet in Excel. Whether you are managing a small shop or a larger store, this sheet will help streamline your inventory management and improve overall productivity. अवलोकन। किसी जनरल स्टोर को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए इन्वेंट्री, बिक्री और स्टॉक स्तरों की सटीक ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक शक्तिशाली उपकरण है जो स्टोर मालिकों को इस डेटा को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करता है। एक्सेल में एक जनरल स्टोर शीट बनाकर आप स्टॉक उपलब्धता की निगरानी कर सकते हैं, खरीदारी और बिक्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यह मार्गदर्शिका आपको एक्सेल में एक सरल लेकिन प्रभावी जनरल स्टोर शीट स्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में बताएगी। चाहे आप छोटी दुकान का प्रबंधन कर रहे हो या बड़े स्टोर का, यह शीट आपके इन्वेंट्री प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और सामग्री उत्पादकता में सुधार करने में मदद करेगी। Creating a general store sheet in Microsoft Excel helps you manage inventory, sales, and stock efficiently. Here is a step-by-step guide to create a basic general store sheet. Microsoft Excel में जनरल स्टोर शीट बनाने से आपको इन्वेंट्री, बिक्री और स्टॉक को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यहाँ एक बुनियादी जनरल स्टोर शीट बनाने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। स्टेप 1, ओपन एक्सेल, लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक टू स्टार्ट फ्रेश। चरण 1, एक्सेल खोलें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च करें।
नई शुरुआत करने के लिए ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। स्टेप 2, सेट अप द कॉलम्स। लेबल योर कॉलम्स इन रो 1 टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। चरण 2, कॉलम सेट करें। अपने डेटा को व्यवस्थित करने के लिए पंक्ति 1 में अपने कॉलम को लेबल करें। नंबर 1, A1 आइटम कोड, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच आइटम। नंबर 2, B1 item name, name of the product. Number 3, C1 category, as for example food, toiletries, stationery. Number 4, D1 unit, as for example pieces, kilogram, liter, etc. Number 5, E1 purchase price, price at which you buy the item. Number 6, F1 selling price, price to which you sell. Number 7, G1 quantity in stock. Number 8, H1 stock value calculated automatically. Number 9, I1 reorder level, minimum stock before restocking. Number 10, J1 supplier name. Example is given below. Step 3, format the table. Select the range A1 colon J1. Go to the home tab, format as table, choose a style. This helps with sorting and filtering data easily. चरण 3, तालिका को प्रारूपित करें। रेंज A1 कॉलम J1 चुनें। होम टैब पर जाएं, तालिका के रूप में प्रारूपित करें, एक शैली चुनें। यह डेटा को आसानी से सॉर्ट करने और फिल्टर करने में मदद करता है। स्टेप 4, ऐड फॉर्मूलाज। नंबर 1, स्टॉक वैल्यू कैलकुलेशन। इन सेल H2, enter this formula to calculate the total value of stock for each item equal to F2 multiply by G2. This multiplies the selling price by the quantity in stock. Drag the fill handle down to apply the formula to other rows. Number 2, conditional formatting for low stock. Select the quantity in stock column G2 colon G100. Go to home, conditional formatting, new rule, format only cells that contain. Set the rule sale value less than equal I2. Choose a red fill to highlight items that need restocking. चरण 4, सूत्र जोड़ें। नंबर 1, स्टॉक मूल्य गणना। सेल H2 में प्रत्येक आइटम के लिए स्टॉक के कुल मूल्य की गणना करने के लिए यह सूत्र दर्ज करें। इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई G2। यह विक्रय मूल्य को स्टॉक की मात्रा से गुणा कर देता है। अन्य पंक्तियों पर सूत्र लागू करने के लिए भरण हैंडल को नीचे खींचें। नंबर 2, कम स्टॉक के लिए सशर्त स्वरूपन। स्टॉक में मात्रा कॉलम G2 कॉलन G100 का चयन करें। होम पर जाएं, सशर्त स्वरूपन नया नियम। केवल उन कक्षों को प्रारूपित करें जिनमें शामिल हैं। नियम निर्धारित करें। सेल वैल्यू लेस देन इक्वल टू I2 से कम। उन वस्तुओं को हाईलाइट करने के लिए एक लाल रंग चुनें जिन्हें पुनः स्टॉक करने की आवश्यकता है। स्टेप 5, ऐड सैंपल डेटा। फिल इन सम एग्जाम्पल डेटा टू टेस्ट योर शीट। चरण 5, नमूना डेटा जोड़ें। अपनी शीट का परीक्षण करने के लिए कुछ उदाहरण डेटा भरें। आइटम कोड 001, आइटम नेम शुगर, कैटेगरी ग्रोसरी, यूनिट केजी, परचेज प्राइस 30, सेलिंग प्राइस 35, क्वांटिटी इन स्टॉक 20, स्टॉक वैल्यू 700, रीऑर्डर लेवल 10, सप्लायर नेम ABC ट्रेडर्स, आइटम कोड 002, आइटम नेम टूथपेस्ट, कैटेगरी टॉयलेटरीज, यूनिट पीसेस, परचेज प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 50, क्वांटिटी इन स्टॉक 8, स्टॉक वैल्यू 400, रीऑर्डर लेवल 5, सप्लायर नेम
XYZ supplies. Number 6. Optional. Add dashboard. Create a summary for quick insights. Total inventory value equal to sum bracket start H2 colon H100 bracket close. Total items in stock equal to sum bracket start G2 colon G100 bracket close. Use pivot tables or simple charts for better visualization. चरण 6. वैकल्पिक डैशबोर्ड जोड़ें. त्वरित जानकारी के लिए एक सारांश बनाएं. कुल इन्वेंट्री मूल्य इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट H2 कॉलन H100 ब्रैकेट क्लोज. स्टॉक में कुल आइटम इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट G2 कॉलन G100 ब्रैकेट क्लोज. बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए पिवट टेबल या सरल चार्ट का उपयोग करें. स्टेप 7. सेव योर वर्क. क्लिक फाइल, सेव एज. Choose the location and name your file, as for example general store inventory.xlsx. Save regularly to avoid losing data. चरण 7. अपना कार्य सहेजें. फाइल इस रूप में सहेजे पर क्लिक करें. स्थान चुनें और अपनी फाइल को नाम दें. उदाहरण के लिए जनरल स्टोर inventory.xlsx. डेटा खोने से बचने के लिए नियमित रूप से बचत करें. कंक्लूजन. Creating a general store sheet in Microsoft Excel is an effective way to managing inventory, track stock levels, monitor sales, and streamline store operations. By organizing data into well-structured columns, applying formulas for automatic calculations, and using conditional formatting for quick insights, you can efficiently keep track of stock movements and make informed business decisions. For advanced management, adding dashboards, pivot tables, and charts can provide valuable analytics at a glance. Regularly updating and backing up your sheet will ensure data accuracy and security. निष्कर्ष. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जनरल स्टोर शीट बनाना इन्वेंटरी को प्रबंधित करने, स्टॉक स्तर को ट्रैक करने, बिक्री की निगरानी करने और स्टोर संचालन को सुव्यवस्थित करने का एक प्रभावी तरीका है. डेटा को अच्छी तरह से संरचित कॉलम में व्यवस्थित करके, स्वचालित गणना के लिए सूत्र लागू करके और त्वरित अंतर्दृष्टि के लिए सशर्त स्वरूपन का उपयोग करके आप कुशलतापूर्वक स्टॉक आंदोलनों पर नजर रख सकते हैं और सूचित व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं. उन्नत प्रबंधन के लिए डैशबोर्ड, पिवट टेबल और चार्ट जोड़ने से एक नज़र में मूल्यवान विश्लेषण प्रदान किया जा सकता है. अपनी शीट को नियमित रूप से अद्यतन और बैकअप करने से डेटा सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी. Thanking you all for listening me patiently. If you found this helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद. यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें.